आज हम इस वीडियो में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म कि जो फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए होंगे डेरिवेटिव्स कैसे लेंगे। तो पहले पैरामीट्रिक फॉर्म का ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इफ x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो ए फंक्शन, लेट अस से फंक्शन ऑफ t, कि x भी t का ही फंक्शन है, y भी t का ही फंक्शन है, देन x and y are connected with each other in a parametric form, कि x और y का आपस में जो रिलेशन है वो एक पैरामीट्रिक है, where t is पैरामीटर, t is पैरामीटर ऑफ रिलेशन कह सकते हैं, ऑफ लिंक कह सकते हैं बिटवीन x एंड y, एंड वी आर टू कैलकुलेट और ड्राइव dy बाई dx, हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना है, जबकि y इज ए फंक्शन ऑफ t, सो वी कैन कैलकुलेट dy बाई dt, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t. x is also a function of t, so we can calculate dx by dt, but we are to find out dy by dx, derivative of y with respect to x. So these are called derivative of functions in a parametric form, because dy by dt, we can calculate dy by dt from this function z. So dy by dt can be written as multiplying this by dx and dividing by dx. dy by dt can be written as dy by dt divided and multiplying by dx, because we are going to find out dy by dx. This means dy by dx will be equal to transposing dx by dt to left hand side, it will be equal to dy by dt divided by dx by dt. Means we have to take two derivatives first, derivative of y with respect to t and another function x, the derivative of x with respect to t, and finally dy by dx, derivative of y with respect to x will be quotient of these two functions, dy by dt divided by dx by dt. बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है पर इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो करें। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें जो फंक्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, x इज द फंक्शन 280 square and y is the function 84. Find dy by dx. So we calculate dx by dt from this function, derivative of x with respect to t. तो 2a तो कांस्टेंट है, तो आपका फंक्शन है यहाँ t स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव t की पावर आगे आके 2 इंटू 2 यानी कि 4 पावर रह जाएगी 1, 480. फ्रॉम हेयर dy by dt, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, a इज कांस्टेंट, सो इट विल बी इक्वल टू 4at क्यूब, पावर आगे आके एक पावर कम हो जाएगी जो पहले काफी हम कर चुके हैं. सो dy by dx will be equal to dy by dt divided by dx by dt. dy by dt is 4at cube and dx by dt is 480. So it will be equal to t square, 4 cancels, a also cancels, t cube and t, तो t की एक पावर आप कम कर दिया, यहां से कैंसिल कर दिया एक t, तो वी गेट t स्क्वायर. सेकंड क्वेश्चन है x is a cos theta, x is a cos theta and y is b cos theta, y is b cos theta. Find dy by dx. From here we calculate dx by d theta
a is a constant, so derivative of cos theta is minus sin theta, and from here dy by d theta will be equal to minus b. Again derivative of cos theta will be minus of sin theta. So dy by dx will be equal to dy by d theta divided by dx by d theta. Here parameter is theta. In this question parameter was t. Here it is theta. So dy by d theta means minus b sin theta, or divided by dx by d theta minus a sin theta. So minus cancels, sin theta cancels, and it is equal to b by a. थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू cos 2t. फाइंड dy by dx. फ्रॉम हेयर dx by dt will be equal to derivative of sin t is cos t. sin का डेरिवेटिव होता है cos, and dy by dt cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin. तो माइनस sin और जो एंगल है वो रहता है 2t है, तो 2t रहेगा इधर। तो क्योंकि t था, t का डेरिवेटिव 1 आना था कि, तो हमने यही इसको कंप्लीट मान लिया था, लेकिन यहां पर अभी डेरिवेटिव आएगा किसका? डेरिवेटिव ऑफ डी डी टी ऑफ 2t. 2t का डेरिवेटिव अभी लेंगे और 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, t का 1 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल वी गेट 2 sin 2t. सो dy by dx which will be equal to dy by dt divided by dx by dt. Now dy by dt is minus 2 sin 2t and dx by dt is cos t. तो ये इसका आंसर है। वैसे पर हमें पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनमें इतने सारे रिलेशंस होते हैं आपस में, तो हम उसको काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जहाँ तक हम कर पाएँ तो करना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप sin 2t को लिख सकते हैं 2 sin t cos t। sin 2 थीटा हमने यूज किया है इसमें, डबल एंगल फार्मूला। sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई cos t कैंसल्स एंड वी गेट माइनस 4 sin t। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू 4t, x is equal to 4t and y is equal to 4 by t. Again parameter is t. So dx by dt will be equal to, तो 4 तो कांस्टेंट है, t की पावर है 1, 1 आगे पावर t की 0 मीन्स 1 आएगा इसका डेरिवेटिव। तो 4 into 1 is equal to 4 एंड dy by dt will be equal to, तो ये आएगा आपका माइनस 4 by t स्क्वायर। कैसे? इसको आप यूं लिख सकते हैं 4 into t raised to a power minus 1। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 आगे माइनस 4 और t की पावर हो जाएगी माइनस 2 विच कैन बी रिटन एज माइनस 4 by t स्क्वायर। तो ये dy by dt, ये dx by dt and we are to find out dy by dx which will be equal to dy by dt dx by dt. dy by dt is minus 4 by t square and dx by dt is 4 cancels and we get 1 minus 1 by t square which is the final derivative of y with respect to x. तो ये हमारे पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5।
फिफ्थ क्वेश्चन, x is cos theta minus cos 2 theta. X is equal to cos theta minus cos 2 theta and y is equal to sin theta minus sin 2 theta. Sin theta minus sin 2 theta. Find dy by dx. Here parameter is theta. So differentiating with respect to theta, dx by d theta will be equal to difference of two functions. So derivative will be difference of the derivatives. तो cos थीटा का डेरिवेटिव अलग से आएगा माइनस साइन थीटा, और cos 2 थीटा का फिर माइनस साइन 2 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा, यानी कि इंटू 2 थीटा का 2 और आएगा, और ओवरऑल वी विल गेट माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा. फ्रॉम हेयर dy बाई डी थीटा, साइन थीटा डेरिवेटिव कोस थीटा, साइन 2 थीटा डेरिवेटिव कोस 2 थीटा, और देन डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा विल बी 2, दैट इज cos theta minus 2 cos 2 theta. And finally dy by dx will be equal to dy by d theta divided by dx by d theta. अब dy by d theta थोड़ा सा यहाँ केयरफुल रहेंगे बच्चे कि हम कई बार dx by d थीटा को जो न्यूमरेटर बना देते हैं और dy by d थीटा नीचे. तो dy by dx मीन्स dy by d थीटा जो आपका न्यूमरेटर का काम करेगा और dx by d थीटा डिनोमिनेटर यानी वो नीचे आएगा. तो dy by d थीटा है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और dx by d थीटा है माइनस साइन थीटा, पीछे लिख सकते हैं हम 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा. तो इसमें हालांकि थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, पर ये छोटा ऊपर कुछ कैंसिल खास हो नहीं पाएगा. वैसे तो इसको 2 साइन थीटा कोस थीटा यहाँ भी लिख सकते थे, साइन थीटा कॉमन ले सकते थे, लेकिन ऊपर से ऐसा हो नहीं पाएगा, तो इसको यहीं जो है वो छोड़ देते हैं जी. आगे इसमें ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के चांसेस हैं नहीं. सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ कि वो x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा, a 1 प्लस कोस थीटा. फाइंड dy by dx, derivative of y with respect to x. Functions are in parametric form. तो सबसे पहले हम dx by d थीटा निकालते हैं. So x is a into theta minus sin theta. Differentiating with respect to theta, both sides we get dx by d theta, derivative of x with respect to theta. A constant, theta derivative will be 1, पावर 1 है इसकी, 1 आगे आगे पावर 0 हो जाएगी, और sin theta will be cos of theta. तो ये आपका हुआ dx by d theta. Now dy by d theta, तो y is equal to a into 1 plus cos theta. So dy by d theta will be equal to a, 1 derivative will be 0, and cos theta will be minus sin theta, and overall it will be equal to minus a sin theta, minus a sin theta, dy by d theta, and this is dx by d theta. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये कई बार. फाइनली dy by dx, derivative of the function y with respect to x, it will be equal to dy by d theta dx by d theta. dy by d theta is minus a sin theta, and dx by d theta is a
इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ए कैंसल्स विद ए। तो ये हमारा आंसर हुआ माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, कैसे? जो न्यूमरेटर है ऊपर ये साइन थीटा, इसमें हम साइन 2 थीटा लगा सकते हैं। वो क्या कहते हैं? 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसमें हमने लगाया कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये पहले भी बताया है कि 2 थीटा मीन्स ऐसा नहीं कि 2 थीटा होगा तभी हम ये यूज करेंगे। 2 थीटा मीन्स कि इधर एंगल जो है वो डबल है और इधर एंगल हाफ है। तो जैसे कि यहाँ 60 है तो यहाँ 30 हो जाएगा, मीन्स एंगल हाफ करने से मतलब है। यदि यहाँ पहले से ही थीटा हो, 2 थीटा ना हो कि यहाँ ऑलरेडी थीटा हो, तो इधर एंगल जो है वो हाफ हो जाएगा। अब थीटा का हाफ होगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। तो वही हमने लिखा है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई। तो ये एंगल को हाफ करने की बात है। नीचे 1 माइनस कोस 2 थीटा होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बहुत बार यूज होगा, पहले भी आया है। एक बार और देख लेते हैं तो कि कोस 2 थीटा की एक फॉर्म है 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ये जो लिखा हमने 1 माइनस कोस थीटा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि प्लस हो तो फिर कोस स्क्वायर बनेगा। कैसे? तो हमने कोस 2 थीटा की 3 फॉर्म लिखवाई थी, बल्कि 4 होती हैं। यदि टेंजेंट वाली भी हम शामिल कर लें तो एक फॉर्म ये भी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो इसको तो आप अच्छी तरह समझ लें, याद कर लें, क्योंकि ये +2 में कम से कम सैकड़ों बार जो है वो ये आइडेंटिटी यूज होनी है। तो ये रिलेशन यूज होना है कि 1 माइनस कोस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ प्लस हो तो फिर ये कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ भी वही बात है जो यहाँ थी। क्या क्या कहता है ये कि इधर एंगल है डबल 2 थीटा, तो इधर रह जाता है थीटा। तो यहाँ पर हमारा एंगल कितना था? ऑलरेडी पहले ही थीटा था, 2 थीटा नहीं था, तो यहाँ हाफ रह जाना था। तो हमने इसलिए थीटा बाई 2 लिखा। 2 कैंसल्स, साइन थीटा बाई 2 कैंसल्स, एंड वी आर लेफ्ट विद कोस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई एक जो है वो साइन थीटा बाई 2 बचेगा। स्क्वायर था ये तो एक कैंसिल हो गया था। और कोस बाई साइन होता है कोट, बिकॉज एंगल इज सेम थीटा बाई 2। सो कोस थीटा बाई साइन थीटा कैन बी रिटन एज कोट ऑफ थीटा बाई 2। तो जो बाकी क्वेश्चंस हैं इनके एक्सरसाइज के हमारी 5.6 के, वो अगले वीडियो में जो हम करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं तो वो भी आप जरूर देखें। धन्यवाद। 25 मिनट की हुई होगी।